സിംഹത്തെ അതിൻ്റെ മടയിൽ കയറി നേരിടണമെന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ കോട്ടയിൽ കയറി കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ. ഛാത്രം കി ഗൂഞ്ച് എന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള സംവാദ പരിപാടിയിൽ പ്രയാഗ്രാജ് ഇളകിമറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാജ്യം കണ്ടത്. രാജ്യത്തെ യുവതയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള വാക്കുകളാണ് സംവാദത്തിൽ രാഹുലിൽ നിന്നുണ്ടായത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രയാഗ്രാജിലെ സംവാദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത്. കയ്യിൽ ഒരു ബിരുദമുണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇനി ജോലി ലഭിക്കില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ യുവജനത കടുത്ത തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുകയാണെന്നും രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ. 1000 യുവതി യുവാക്കളിൽ വെറും 12 പേർക്ക് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. 150 ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കുക. തൊഴിലവസരം നൽകുന്ന പ്രധാന മേഖലകളെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടെന്നും പൊതുമേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചെന്നും രാഹുൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ട് നിരോധനവും GSTയും നിർമ്മാണ മേഖലയെ തകർത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി 40 കോടി വരുന്ന ഊർജ്ജസ്വലരായ യുവാക്കളാകണമെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജൻസികളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി സംവാദം മാറുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഇത് BJP ശരിക്കും അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. രാഹുലിന്റെ പരിപാടി ഫ്ലോപ്പ് ഷോയാണെന്നും യുവാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് മന്ത്രി ഡാനിഷ് അൻസാരി പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒപ്പമാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡാനിഷ്. എന്നാൽ പരിപാടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടയാർക്കും അത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത്രയേറെ പങ്കാളിത്തമാണ് സംവാദത്തിലുണ്ടായത്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ ജൻസികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാഹുൽ ഛാത്രം കി ഗൂഞ്ച് എന്ന പരിപാടിയുമായി രാജ്യവ്യാപകമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സംവാദ പരിപാടി തടയാൻ BJP പല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റിയെങ്കിലും ഒന്നും വിജയിച്ചില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമായി കൂടി വേണമെങ്കിൽ രാഹുലിന്റെ ഈ പരിപാടിയെ കാണാം. അടുത്ത വർഷമാദ്യം സംസ്ഥാനം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. UP പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ സഖ്യവും കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയുമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുന്നേറ്റമാണ് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നത്. 10 വർഷത്തെ യോഗ്യഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അയോധ്യ ക്ഷേത്രക്കൊള്ള ഉൾപ്പെടെ വിഷയങ്ങളിൽ BJPയും യോഗി സർക്കാരും പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയുള്ള കളിക്ക് രാഹുൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ പ്രയാഗ്രാജിൽ നടന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സംവാദ പരിപാടി കാണാം. നമസ്കാർ, how are you? Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था, तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है. ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था. एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं. आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए उनका धन. इन 3 चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं. आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो. और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं. मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं. आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा. हिंदुस्तान के पास दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है. 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं. ये इस देश की स्ट्रेंथ है. चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है. इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है. 21वीं सदी में एक और चीज हुई है. 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो 2 चीजों के बल पे करता है. यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो. दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है. 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है. और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा, तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा. युवा प्लस डेटा is equal to 21st century economy. Brothers and sisters, everybody speaks about AI, but I want to make one thing very clear.
आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। डेटा से आप एआई बना सकते हो, मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। एक युवा की आवाज सुने, ये जो बोलेंगे ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। पैसा होता हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए बताइए। यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी, इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। सर, मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने नई भर्ती की आस में और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर, 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीजें 2025 में भी देखने के लिए मिली। ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। अगर आज 2018 से मैं अब बेरोजगार टहल रहा हूं, कोई स्किल हमें दे दिए होते 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी, इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूं, और काम करूं तो वो डेली वेजेस के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया।
स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज, आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों और बहनों, अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, 1 युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों और बहनों, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्न उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि 5 दरवाजे आपके लिए बंद है, और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। यह सिस्टम क्या है और यह सिस्टम को कौन चलाता है? डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। यह सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के, हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भगवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट चला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा।
बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो रिटर्न कर लिया जाता है। किसान का बेटा हूं सर, ये महीना का 10 से 15 हजार रुपये खर्चा होता है सर। कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। सर, कल को अगर आप गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बने तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि जैसे आप आज स्टूडेंट के साथ खड़े हैं वैसे कल भी खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू, शाबाश। नियुक्तियां जो होती हैं सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब आप सवाल करोगे आपकी डिग्री रोक दी जाएंगी। अभी हमारे साथियों पे सर मुकदमे कर दिए गए। अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, हो सकता है कल पे हम दोनों पे मुकदमा होगा। बिल्कुल सर, ये वहाँ का नियम है सर। सर हम कह देना चाहते हैं, बिल्कुल सर हम कह देना चाहते हैं सर, हम गांधी के अनुयायी थे, गांधी के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी रहेंगे। और उन संघी या कोई भी हो सर, हम डरने वाले नहीं है। आइडियोलॉजी से समझौता सर जीवन में कभी नहीं होगा। ये थी बिहार और उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आवाज। नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा।